ایک منٹ سٹارٹ کروں نا، پھر میں سٹارٹ کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد ذی المجد والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے مل کے درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ سب تو اچھی شان والا آ گیا، سب تو اچھی شان والا آ گیا، اچھے رتبے پان والا آ گیا، آسیو گناہ گارو، آسیو گناہ گارو، رل مل خوشیاں مناؤ، غریباں نو گل نال لاؤن والا آ گیا۔ آسیو گناہ گارو، رل مل خوشیاں مناؤ، غریباں نو گل نال لاؤن والا آ گیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض گزار ہوں، اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے سننے آئے ہیں، اللہ آپ کا آنا، میرا پڑھنا اور میزبان کا محفل کو سجانا اللہ آپ کی بارگاہ میں، اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ابتدا میں بات سمجھ لیجئے گا، سادہ اردو میں بات کروں گا، امید ہے ہر بندے کو سمجھ آئے گی۔ اگر کسی کو نہ سمجھ آئے تو پھر بھی بتا دیجئے گا، پنجابی کی بھی کوشش کر لوں گا، یہ تھوڑی وصل بند کر دیں۔ آپ بھی دیہاتی ہیں، میں بھی دیہاتی ہوں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بات سمجھا کے آگے لے کے چلوں۔ رب کا قرآن ہے، قل بفضل اللہ، اے محبوب آپ کہہ دیجئے، قل کا معنی آپ کہہ دیجئے۔ یار کلام میرے رب کا ہے، کہیں مصطفیٰ، قرآن رب کا ہے، کہیں مصطفیٰ، آخر بات کیا ہے؟ میرا رب در حقیقت بتانا چاہتا ہے، کلام ضرور میرا ہے، میں چاہتا ہوں زبان میرے مصطفیٰ کی ہو، زبان میرے مصطفیٰ کی ہو، منہ اپنے میرے مصطفیٰ کھولیں، لب اپنے مصطفیٰ کھولیں، اور پھر میرا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے۔ اب کیا ہے؟ بفضل اللہ وبرحمتہ، جب اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے، فَلْيَفْرَحُوا، تو پھر خوشیاں مناؤ۔ کوئی چیز مل جائے، مثال کے طور پہ کسی کے ہاں بیٹا ہو جائے تو وہ خوشی مناتا ہے یا نہیں مناتا؟ اگر میرے اور آپ کے گھر بیٹا پیدا ہو تو ہم پھولے نہیں سماتے، خوشیاں مناتے ہیں۔ کل کائنات کا اگر آقا آ جائے تو پھر خوشیاں نہ منائی جائیں؟
फिर हुजूर की आमद पे नारे ना लगाए जाएं, झूमा ना जाए, फिर झूम के हुजूर के तराने ना गाए जाएं। भाई हुजूर की आमद आए तो खुल के हुजूर की आमद पे हुजूर के तराने गाओ, हुजूर के नारे लगाओ और कहो आ गए मुस्तफा आ गए, आज दुनिया में खैरुल वरा आ गए, बस में कौनैन में हर तरफ नूर है, मुस्तफा आ गए मुज्तबा आ गए। मेरे हुजूर की आमद का तज़किरा करना है, मेरे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह बिफज़्लिही तआला। अल्लाह के हुक्म से आप उठेंगे तो दामन भर के उठेंगे। ऐसा कुछ नहीं मैं करने वाला कि आपके सामने मैं कान पे हाथ रख लूं, लंबी लंबी सुरें खींचूं और जब आप उठे कानों का चस्का आपको मिल जाए और बाद में पल्ले कुछ ना पड़े। ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। मेरा दावा है बिफज़्लिही तआला। मैं पंजाबी हूँ, आप भी पंजाबी ही हैं, सारे समझने वाले हैं, लेकिन जिस इलाके में मैं रहता हूँ बिहम्दिल्लाहि तआला, लोग दूर दराज से सिर्फ मेरा जुमातुल मुबारक सुनने के लिए आते हैं, सिर्फ जुमा सुनने के लिए आते हैं। मैं कोई बड़ा खतीब नहीं, मुदर्रिस हूँ, दीन पढ़ाने वाला, सुबह से लेके शाम तक काल अल्लाह काला रसूलुल्लाह की सदाएं लगाने वाला हूँ। बस यही मेरा काम है, इसके सिवा मेरा कुछ काम नहीं। बस तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा। खुशी मनाएं, किस तरह खुशी मनाएं? मौला तू खुशी मनाने का कह रहा है, हम मनाएं कैसे? अब मेरा रब बताने लगा है कि खुशी महबूब की आमद पे मनाई कैसे जाती है। अब मेरा रब बताएगा, देखिए किस अंदाज में कहा। अगर खुशी मनाने का तरीका सीखना है ना तो मेरे घर खाना काबा से सीख लो। खाना काबा से कैसे खुशी सीखनी है, मनाने का तरीका। मौला ये बात समझ नहीं आई। अब सुनिएगा, इमाम ज़ुरकानी ने इस रवायत को नकल किया, इमाम अबू नुआइम ने इस रवायत को नकल किया और इस रवायत को ख़साइसुल कुबरा के अंदर अल्लामा जलालुद्दीन अस्सयूती लिखते हैं। रवायत सुनिएगा क्या रवायत ये है, जनाब अब्दुल मुत्तलिब पीर के रोज रात जा रही थी, दिन आ रहा था, रब के घर का तवाफ करने लगे। रब के घर का तवाफ करते हैं, अभी हुजूर की आमद नहीं हुई। ये वो घड़ियां हैं, ये वो लम्हे हैं जिन लम्हों में मेरे हुजूर दुनिया पे तशरीफ ला रहे थे। उन घड़ियों के अंदर रब के घर का तवाफ करते रहे। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है? रब के घर का तवाफ कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, करते करते अजब मंजर देखते हैं कि रब का घर खाना काबा हिलने लगता, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। जब ये मंजर रब के घर को झूमता हुआ जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने देखा तो हैरान हो गए। कहते मैं खाना काबा के सामने आके जब हजरे अस्वद के करीब आया तो मेरी हैरत की हद न रही। मैंने देखा काबा झुका जा रहा है आमिना के घर की तरफ, काबा झुक रहा है आमिना के घर की तरफ। फरमाते हैं मैं हैरान था, कुल कायनात काबे की जानिब झुकती है, सारी कायनात काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ती है। आज अजब मंजर देख रहा हूं, काबा इधर झुक रहा है। अभी इन सोचों में गुम था कि एक लौंडी आई और आके कहने लगी, अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें मुबारक हो, तेरे यहाँ पोता पैदा हुआ है, तेरे बेटे के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब दौड़ते हुए जाते हैं, जाके आमिना के दरवाजे पे दस्तक देते हैं, दरवाजा खुलता है, हजरत आमना के कमरे में तशरीफ ले जाते हैं, जाके कहते हैं आमना मुझे जरा दिखाओ तो सही मेरा पोता कैसा है, मेरा पोता कैसा है। सैयदा आमना मेरी और आप सबकी माँ अपने बेटे को उठाती है, उठा के हुजूर की गोद में डाल देती हैं। किनकी? जनाब अब्दुल मुत्तलिब की गोद में डालती हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब जब उस गोद में उठाते हैं उस बच्चे को तो उठा के देख के कहते हैं कसम खुदा की आज तक ऐसा सोना मेरी आंखों ने देखा ही नहीं है, इतना हंसी चेहरे वाला मैंने कभी कोई नहीं देखा। साथ ही फरमाते हैं ए आमना ये इतना सोना है, इसके सोने की आमद पे सिर्फ मैं नहीं खुशी मना रहा, रब का काबा भी इधर को झुक रहा था, मैं तो हैरान थी। फरमाती हैं क्या हुआ? फरमाते हैं उठाया और उठा के फिर खाना काबा में ले गए, खाना काबा के सामने खड़ा किया तो खाना काबा जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं यूं लगता था जैसे मोहम्मद के कदमों को बोसे दे रहा है, जैसे मोहम्मद के कदमों को
بوسے دے رہا ہے تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں جب خانہ کعبہ کو میں نے جھومتے دیکھا تو میں نے کہا یہ کوئی عام بچہ نہیں، بڑی شان والا ہے۔ میں آپ کو جس بات تک لے آ کے لانا چاہتا ہوں سنیے گا، وہ بات کس جگہ ہے۔ میں نے کہا تھا کہ خوشی منانے کا انداز کیا ہے، خانہ کعبہ سے سیکھتے ہیں۔ خانہ کعبہ بھی مصطفیٰ کی آمد پہ جھوما ہے، تم بھی جھوم کے خوشی مناؤ، تم بھی جھوم کے خوشی مناؤ۔ یار حضور کی آمد پہ خانہ کعبہ جھومے اور مستی میں آ جائے اور حضور کی آمد کا چرچا کرے جھوم کے، اور اہل ایمان حضور کی آمد پہ جھومے تو پھر اہل ایمان نہیں ہوتے، بلکہ مومنوں کی علامت ہی یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن گلی گلی کوچے کوچے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ اب دیکھیے جا کے بچے کو گھر لے گئے تو دائیاں آئیں۔ آپ نے یہ باتیں ساری سنی ہیں لیکن میرا سنانے کا کچھ انداز مختلف ہوگا۔ وہ سننے کے ساری آئیں دیکھنے کے لیے آئیں اور آ کے دیکھ کے چلی گئیں۔ یہاں لوگ کہتے ہیں انہوں نے حضور کو چھوڑ دیا، میں کہتا ہوں ظالموں اپنی زبان سنبھالو، میرے محبوب نے انہیں پسند ہی نہیں کیا تھا، میرے محبوب نے انہیں پسند ہی نہیں کیا تھا۔ وہ کہنے لگی یہ یتیم بچہ ہے، یہاں سے ہمیں کیا ملے گا، یہ تو غریب گھر کا ہے۔ میرے حضور در حقیقت مسکرا رہے تھے آمنہ کی گود میں اور فرما رہے تھے تم جاؤ، تم جاؤ، تم کہتی ہو یہ غریب ہے، میں غریب نہیں، میں تو غریبوں کو نوازنے کے لیے آیا ہوں، میں تو غریبوں کو نوازنے کے لیے۔ اماں حلیمہ سعدیہ آئیں، حضور علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا۔ حضور نے اس سے پہلے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا، سارے دائیوں نے اپنا دودھ بھی پلانے کی کوشش کی۔ امام زرقانی لکھتے ہیں حضور نے کسی دائی کے دودھ کو منہ نہیں لگایا۔ جب حلیمہ سعدیہ آئیں تو میرے حضور دودھ پینے لگے، میرے حضور دودھ پینے لگے۔ میرے حضور نے پہلی دائیوں کا دودھ اس لیے نہیں پیا تھا، وہ دائیاں اس قابل نہیں تھی کہ مصطفیٰ کے لب ان کو لگ جاتے، مصطفیٰ کے ہونٹ ان کو لگ جاتے۔ میرے حضور نے انہوں کو پسند نہیں کیا۔ اب حلیمہ سعدیہ نے میرے حضور کو اٹھا کے کہا سفر تو کر کے آئی ہوں، بنو سعد سے چل کے آئی ہوں، کیوں نہ رب کے گھر کا طواف ہی کر لوں۔ اب میں دیکھوں گا آپ کے ایمان کا جذبہ کیا ہے، میں دیکھوں گا آپ کے اندر کی کیفیت کیا ہے، حضور کے ساتھ محبت کا انداز کیا ہے۔ فرماتی رب کے گھر کا میں طواف کرتی رہی، میں حجر اسود کے سامنے آئی۔ جب حجر اسود کے سامنے آئی تو میں نے کہا کیوں نہ میں اس حجر اسود کو ہی بوسہ دے لوں۔ کہتی میں بوسہ دینے لگی نا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا میں نے تو دینا ہی دینا ہے، پہلے اس بچے کے لبوں کو حجر اسود کے ساتھ لگا لوں۔ حلیمہ کہتی ہیں قسم خدا کی عجب منظر میں نے دیکھا، عجب منظر میں نے دیکھا جب میں نے حضور کے لب حجر اسود کے قریب کیے، کل کائنات حجر اسود کو بوسے دیتی ہے۔ حجر اسود اپنی جگہ سے باہر نکل کر جھومنے لگا، جھوما اور آگے بڑھ کے مصطفیٰ کے لبوں کو چومنے لگا۔ حاجیوں چلے آؤ، حاجیوں چلے آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ میرے مصطفیٰ کو دیکھ کے کعبہ بھی جھوما، میرے مصطفیٰ کی آمد پہ حجر اسود بھی جھوما۔ میں بتا رہا ہوں مصطفیٰ کا جب تذکرہ ہو تو کھل کے بیٹھنا چاہیے، جھومنا چاہیے، مصطفیٰ کی آمد کے ترانے گانے چاہیے، اپنے آپ کو چھپا کے اور بڑے مہذب بن کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ مسکرائیے آمد مصطفیٰ پہ، خوشیاں منائیے، آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آج دنیا میں خیر الورا آ گئے، بس میں کونین میں ہر طرف نور ہے، مصطفیٰ آ گئے مجتبیٰ آ گئے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں نے حضور کو اٹھایا میں سواری پہ سوار ہونے لگی تو میری سواری جو سب سے پیچھے رہ گئی تھی میں سب سے بعد میں آئی تھی، میری سواری لاغت تھی، کمزور تھی۔ جب میں اس پہ سوار ہوئی نا تو میری سواری اتنی تیز ہو گئی جیسے اس کو بیماری نے کبھی چھوا ہی نہیں ہو، کبھی بیماری اس کے قریب ہی نہ آئی ہو۔ اب سواری دوڑنے لگی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، حلیمہ سعدیہ کہتی جو دائیاں پہلے گئی تھی وہ پیچھے رہ گئی۔ جب میں ان سے آگے گزری نا، میں آگے نکلی تو آواز تھی حلیمہ رک جا، حلیمہ رک جا، بات تو سن۔ حلیمہ کہتی میں نے کہا کیا کہتی ہو؟ کہا حلیمہ کون سا ایسا لال لے کے آئی ہو کہ
कि अब तुम्हारी सवारियां ही बदल गई उसके आने से, कोई सवारी बदल ली है। हलीमा का जवाब सुनिए। हलीमा आगे से जवाब देती हैं, ओ सखियों, ओ सहेलियों, सवारी नहीं बदली बल्कि सवार बदल गया है, बल्कि सवार बदल गया है। कहा सवार बदल गया है, मैं नहीं, मेरी बरकत रही है। ये जो सोना आया है इसके कदमों की बरकत से सवारी भी तंदुरुस्त और तवाना हो गई है। बीमार सवारी तंदुरुस्त और तवाना हुई। हलीमा सादिया कहती मैं घर में हुजूर को ले गई। हाँ, बनु साद में कहत साली थी, कहीं कुछ ना था, लोग भूखे मर रहे थे, बारिश कभी बरसी ही नहीं थी, और हलीमा सादिया के घर में दूध नहीं था। आप दूध को खीर कहते हैं, खीर कहते हैं। हलीमा सादिया के घर में खीर नहीं थी। हलीमा सादिया बड़ी परेशान। हलीमा सादिया कहती है बनु कुरैश का, बनु हाशम का ये मैं लाज दुलारा तो घर ले आई हूँ, मेरे घर तो दूध नहीं है। हलीमा कहती मैं परेशान थी, घर में कदम रखा, मेरे घर के अंदर एक बकरी थी जो रेवड़ में चलने नहीं जाती थी, बीमार थी, जिसकी हड्डियों में गुद्दा नहीं था, जिसकी हड्डियां किसी काम की नहीं, लागत थी, बीमार थी, कमजोर थी, घर में ही पड़ी रहती थी, और हम देखते थे कब इसकी जान निकलेगी, कब ये मर जाएगी। हलीमा कहती हैं जब मैं घर में दाखिल हुई तो मेरे घर में भागती फिरती एक बकरी को मैंने देखा। मैंने खामन से पूछा, ऐ मेरे सरताज, क्या आज कोई बकरी घर रह गई, रेवड़ में चढ़ने नहीं गई? तो मेरा खामन कहने लगा हलीमा नहीं। तो कहा ये बकरी कौन सी है? कहा ये वही तो बकरी है जो बीमार थी, जो मरने के करीब थी। हलीमा सादिया कहती आज इसे क्या हुआ? तो हलीमा सादिया के खामद कहते हैं हलीमा तुझे नहीं पता, तूने देखा नहीं कि हमारी बीमार ऊंटनी मोहम्मद आए तो भागने लगी, वो भी मौजे मारने लगी, वो भी झूमने लगी। मुझे लगता है मेरे मुस्तफा की आमद पे ये भी खुशियां मना रही है। देखें बकरियां खुशियां मनाए और मुसलमान खुशी हुजूर की आमद पे ना मनाए, तो इससे तो बेहतर वो जानवर ही हुए ना जिनको पता है आ गए मुस्तफा आ गए, आज दुनिया में खैरुल वरा आ गए। ओ मेरे और आपके लिए तो इससे बड़ी खुशी की बात कौन है? गरीबों को पूछता कौन था? भाई गरीबों के बख्त सवल्ले हुए तो मुस्तफा के सदके से हुए ना, गरीबों को इज्जतें मिली हैं तो मुस्तफा के सदके से मिली है ना। हलीमा सादिया कहती कि बनु साद में आ तो गए हैं, ऐ मेरे खामद फिर जाओ कहीं से दूध तो मांग के लाओ। हलीमा सादिया ने जब अपने खामद से कहा तो अब खामद बाहर निकला, देखता क्या है वही बकरी दरवाजे में खड़ी है, उसने टांगे खुली की हुई हैं और खुली होके थनों में दूध ही दूध भरा, दूध ही दूध है। हलीमा सादिया कहती, हलीमा सादिया का खामद कहने लगा ऐ हलीमा दूध किसी से क्यों मांगना है, हमारी बकरी के तो खीरी थन भरे हुए हैं दूध से, बर्तन लाओ। हलीमा कहने लगी कौन सी बकरी? कहा वही बकरी जिसे बीमार है देवर के साथ नहीं ले जाया जाता। कहा इसे क्या हो गया? हलीमा कहने लगी इसको भी पता चल गए आ गए मुस्तफा आ गए। इस हलीमा ने कहा इस बकरी को भी आज पता चल गया। हलीमा बर्तन लाओ। हलीमा कहती मेरे पास बर्तन थे, मैंने एक दिया, आवाज आई खामद की, हलीमा बर्तन और ले आ। मैं दूसरा बर्तन ले गई, आवाज आई खामद की, हलीमा बर्तन और ले आ। फरमाती मेरे घर के जितने बर्तन थे सारे ले गई, कसम खुदा की बर्तन खत्म हो गए पर उस बकरी का दूध खत्म नहीं। ओ भाई बकरी को भी पता था आ गए मुस्तफा आ गए, वो भी खुशियां मना रही थी मेरे महबूब की आमद पे। अगर बकरियां खुशियां मनाएं, अगर जानवर खुशियां मनाएं, सवारियां खुशियां मनाएं, तो फिर मोहम्मद के गुलाम हुजूर की आमद पे खुशी ना मनाएं, झूम के हुजूर की आमद पे खुशी मनाओ। नारा लगाएं जनाब, पता चले कौन झूमता है, जरा लगाएं। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मंठार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। महबूब की आमद पे खुशी मनाना ये अंदाज है। देखें अब मेरे हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम की आमद पे जिन जिन लोगों ने खुशियां मनाई उनका अंदाज क्या था, उनका अंदाज क्या था। मेरे हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम की आमद पे खुशी मनाने वाला अगर काफिर भी हो तो उस बंदे पे भी अजाब टल जाया करते हैं। नाम सुना होगा आपने अबू लहब का, सुना है नाम?
कुरान मुकद्दस में तब्बत यदा अबी लहब व तब, अल्लाह फरमाता है उसके हाथ टूट जाए, उसके हाथ टूट जाए, इतना बड़ा काफिर था। देखें, जिस दिन हुजूर की आमद हुई, जिस दिन हुजूर पैदा हुए, वो उस वक्त घर में नहीं था हुजूर के। सुहैबा लौंडी गई, जाके उसे खबर दी, ए अबू लहब, तुझे मुबारक हो, तेरा भतीजा पैदा हुआ, तुझे मुबारक हो, तेरे यहाँ भतीजा पैदा हुआ है। ये हजरत अब्दुल्ला के भाई थे। बात समझिएगा, समझिएगा। अबू लहब काफिर थे, उसके मुतल्लिक रब का कुरान उतरा है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, इतना बड़ा काफिर था। उस सुहैबा ने आके, लौंडी ने खबर दी, तेरे यहाँ भतीजा पैदा हुआ है। जब ये बात सुनी तो खुशी से झूम उठा कि मेरे मरहूम भाई के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। तो उंगली से इशारा किया, जा सुहैबा तुझे आजाद करता हूँ, जा सुहैबा तुझे आजाद करता हूँ। वो अबू लहब की उंगली झूमी। क्या किया उंगली ने? झूमी और इशारा किया, जा तुझे आजाद किया। झूम के कहा, जा तुझे आजादी दी। अब अबू लहब मर गया। हजरत अब्बास अज-जामिउ सहीह अल-बुखारी, उसके अंदर ये रवायत मौजूद है, और इस रवायत को समझिएगा, और इस पे तबसरा, बड़ी अजीम शख्सियत का तबसरा है। जिस बंदे ने उसूल हदीस लिखे हैं, उस बंदे का तबसरा है। वो फरमाते हैं, जब हजरत अब्बास ने ख्वाब में अबू लहब को देखा, अबू लहब से पूछा, अबू लहब बता क्या बना? कहा, बहुत अजाब में मुब्तला हूं, लेकिन एक बात मैं कहूंगा। कहा, कौन सी बात है? कहा, बात यह है, जिस दिन पीर का दिन आता है, जिस दिन पीर का दिन, सोमवार का दिन आता है, उस दिन मेरी एक उंगली से दूध और शहद और पानी की नहरें जारी हो जाती हैं। दूध, शहद और पानी की नहरें जारी हो जाती हैं। कहा, वो क्यों? कहा, मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना याद है, जिस दिन मोहम्मद मेरा भतीजा पैदा हुआ था, एक लौंडी ने आके खबर दी थी, तो मैंने इस उंगली से इशारा किया था, जा तुझे आजादी है। मोहम्मद की आमद पे मैंने इस उंगली से इशारा किया था। रब ने मोहम्मद की आमद की खुशी में मेरी जो उंगली झूमी थी, उस उंगली को जहन्नुम के अजाब से पनाह कर दे दी, और उस उंगली से शहद और दूध और पानी की नहरें जारी होगी। हर पीर को मुंह में रखता हूं, मेरे सारे अजाब टल जाते हैं। हर पीर को इसको मुंह में रखता हूं, मेरे सारे अजाब टल जाते हैं। अगर काफिर हो मुस्तफ़ा की आमद पे खुशी मनाए, काफिर हो मुस्तफ़ा की आमद पे खुशी मना ले, तो उससे जहन्नुम का अजाब टल जाता है। जो मोहम्मद का गुलाम मनाए, फिर उसकी आमद पे, हुजूर की आमद पे खुशी मनाए, तो उसका क्या मुकाम होगा, उस बंदे की इज्जत और वकार क्या होगी। ये मेरे हुजूर की आमद की खुशी पे मनाने से मुतल्लिक दूसरी चीज जिस जानिब मैं लेके आना चाहता हूँ, दूसरी चीज का नाम है इत्तिबाए रसूल। क्या है? इत्तिबा, पैरवी करना, किसी के पीछे लग जाना, किसी के रंग में खुद को रंग लेना, किसी के रंग में खुद को। मोहब्बत किसको कहते हैं? मुझे भाई यासिम साहब ने 2-3 चीजें जिक्र की हैं कि इन चीजों को बयान करना है। दूसरी चीज है मोहब्बत किसको कहते हैं? मोहब्बत है महबूब के रंग में खुद को रंग लेना, महबूब के रंग में खुद को रंग लेना। हर बंदा कहता है मुझे फलां से मोहब्बत है, तो सबसे पहले उस जैसी सूरत बनाई जाए, उस जैसी शक्ल बनाई जाए, फिर उसके हुक्मों को माना जाए, फिर उसकी पैरवी की जाए। इसे मोहब्बत कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अगर इतना प्यारा नबी, इतना सोना नबी हमें दस्तयाब हो गया, तो हमारा हक बनता है उससे मोहब्बत करें। मोहब्बत का पहला अंदाज क्या है? उसके रंग में रंग जाना। हदीस मुबारक सुनिए, अज-जामिउ सहीह अल-बुखारी की हदीस मुबारक। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मेरे और आपके आका के प्यारे सहाबी हजरत अनस फरमा रहे हैं कि मैं बैठा था हुजूर की मजलिस में, हुजूर की मजलिस में बैठा था। अब रवायत सुनिएगा, हजरत अनस से मुताल्लिक है। इससे कबल जो बात समझने वाली वो भी समझिएगा। हजरत अनस बैठे, हाथ में प्याला रखा हुआ, हाथ में प्याला पकड़ा है, उसमें शोरबा है और कद्दू के टुकड़े हैं। किस चीज के? कद्दू, ये सब्जी, कद्दू के टुकड़े हैं। वो उठाते हैं, मुंह में डालते हैं और कहते हैं मजा आ गया,
मजा आ गया, मजा आ गया। कोई पास बैठा था, कहा ए अनस, इतनी मजेदार सब्जी तो नहीं है, तू कहता है मजा आ गया, मजा आ गया, ये बात क्या है? हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों करता हूं, बस बात इतनी सी है। एक बार मुस्तफा की मजलिस लगी हुई थी, हुजूर की बारगाह में इसी तरह एक प्याला पड़ा था, हुजूर के सामने हुजूर उठाते, गर्दन झुकाई हुई थी, हुजूर अंदर से कद्दू का टुकड़ा उठाते, मुंह में डालते, कहते मजा आ गया, मैं तो यार की अदा को अदा कर रहा हूं, मैं तो यार की अदा को अदा कर रहा हूं। मोहब्बत इसको कहते हैं, मैं तो यार की अदा, अपने आप को महबूब के रंग में रंग लेना, यार की अदा को, मैं तो महबूब सोने की अदा को अदा कर रहा हूं, मैं तो उस मोहब्बत को लिए फिर रहा हूं। दूसरी हदीस मुबारक सुनिएगा, मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे सहाबी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अज-जामिउ सहीह अल-बुखारी की रवायत है, रब के घर का तवाफ कर लिया, जब तवाफ मुकम्मल कर लिया तो हजरे अस्वद के सामने आ गए, हजरे अस्वद के सामने आके खड़े हो गए। खाना काबा के तवाफ को मुकम्मल करने के बाद हजरे अस्वद के सामने खड़े होकर क्या फरमाते हैं, ए हजरे अस्वद, तू जात का सिर्फ पत्थर है। क्या है? पत्थर का पता है ना, तू जात का सिर्फ क्या है? पत्थर है। तू ना किसी को फायदा दे सकता है, ना किसी को नुकसान दे सकता है। पता है मैं अब तुझे चूमूंगा तो क्यों चूमूंगा, तुझे पता है मैं तुझे चूमने लगा हूं तो क्यों चूमने लगा है। हजरे अस्वद को मुखातिब करके हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, ए पत्थर, तू जात का पत्थर है, ना किसी को फायदा दे सकता है, ना नुकसान दे सकता है, लेकिन मैं तुझे चूमूंगा। लेकिन बताऊं पता क्यों चूमूंगा? मैंने इन आंखों से देखा है मोहम्मद ने तुझे चूमा है, मैं तो यार की अदा को अदा करने लगा, मैं तो यार की अदा को अदा करने लगा। मोहब्बत इसको कहते हैं। अगली रिवायत सुनिए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दोनों के मुतल्लिक हदीस मुबारक सियासत्ता की हदीस पाक है। फरमाते हैं कि साथ साथी भी थे, सवारी पे सवार हुए हजरत अली मुर्तज़ा या हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, सफर करते गए, एक मुकाम पे जाके रुक गए, एक मुकाम पे जाके रुक गए, सवारी के चक्कर काटे। रवायत में है 3, 7 या 12 चक्कर काटे, काट के मगरिब की जानिब रुख किया और मुस्कुराए, मगरिब की जानिब रुख किया और मुस्कुराए, हंसे, मुस्कुराया, तबस्सुम किया, करने के बाद वापस लौट आए। साथियों ने पूछा, ए अब्दुल्ला इब्ने उमर, इतना लंबा सफर किया, चक्कर काटे, मुस्कुराए और वापस आ गए, आखिर क्या माजरा है? आगे से अब्दुल्ला इब्ने उमर का जवाब सुनिए। कहा, मुझे ये नहीं पता क्या माजरा है, बस ऐसे ही एक दिन आगे आगे आका थे, पीछे पीछे मैं था, हुजूर इसी जगह पे आए, इतने चक्कर काटे जितने मैंने काटे हैं, फिर उसके बाद हुजूर ने इधर रुख किया, मुस्कुराए, मुस्कुरा के वापस चल दिए, मैं तो यार की अदा को अदा करने के लिए। तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफा, मिलाद मुस्तफा। मोहब्बत इसको कहते हैं, महबूब के रंग में खुद को रंग लेना। हुजूर के सहाबी हजरत उमर फारूक, सियासत्ता की हदीस मुबारक, नया कुर्ता पहना, पहले दिन आपके बेटी ने जब आपको पहनाया ना तो सफ़ेद लिबास था पहना, फरमाया ए अब्बा जान, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, बड़े सोहने लग रहे हैं, ये कुर्ता बड़ा जचा है आप पे। जब आपके बेटे ने कहा तो आपकी आंखों से आंसू आने लगे, रोने लगे। अब बेटा कहने लगा, अब्बा जी क्या हुआ? कहा, बेटा जाओ छुरी लेके आओ। क्या लेके आओ? छुरी लेके आओ, काटने के लिए छुरी लेके आओ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर छुरी लेके आ गए। छुरी लेके आए तो हजरत उमर फारूक ने पकड़ा और कुर्ते को तिरछा काट दिया, टेढ़ा काट दिया, सीधा भी नहीं, टेढ़ा काट दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रोकने लगे, अब्बा जी अगर आपने काटना ही है बताएं, कोई ऐसी चीज लाएं जिससे सीधा काट दूं। तो हजरत उमर फारूक की आंखों से आंसू आ गए। हजरत उमर फारूक रो के कहने लगे कि ए अब्दुल्ला, मैंने इन आंखों से देखा है, मेरे महबूब के ज़ेबे तन जो लिबास होता था ना, उस पे जगह जगह पे बांध लगे हुआ करते थे, जगह जगह से सिया हुआ था। मैंने आंखों से देखा, एक बार हुजूर की बारगाह में कुर्ता पहना हुआ था, कुर्ता हुजूर ने पहना था और
काटा हुआ था, नीचे से फटा हुआ था। कहा फिर अब्बा जी आपने ऐसा क्यों किया? कहा तुम कहते हो नया, मैंने इस तरह काट के मुस्तफा की अदा को अदा किया। तुम नए की बात करते हो, ये इज्जतें उमर को मिली है तो मुस्तफा के सदके से मिली है। उमर को कौन जानता था? उमर वो था कि उमर का बाप खत्ताब कहता था 5 ऊंटों को सीधा लाइन में लगाओ। उमर से 5 ऊंट सीधे लाइन में नहीं लगते थे। आज 22 लाख मुरब्बा मील पे उमर अकेला हुक्मरानी कर रहा है। ये सदका है तो मुस्तफा के जोड़ों का सदका है, ये मुस्तफा के कदमों का सदका है। मैं यहाँ तक इज्जतें पाया हूँ और आज मैं अच्छा ऐसा लिबास पहन के फिरूं और हुकूमतें करता फिरूं। ये अंदाज है मोहब्बत का कि महबूब के रंग में खुद को रंग लेना। अब हदीस मुबारका सुनिए, सियासत्ता की हदीस मुबारका। इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी ने इस रवायत को नकल किया। सुनन अबी दाऊद के अंदर ये भी रवायत है। फरमाते हैं कि एक सहाबी बदीन से आए, सफर करके, पैदल सफर करके आए। पैदल सफर, मैं अभी देख रहा था साथी पैदल आ रहे हैं महफिल सुनने के लिए। आप भी कोई ऐसी अदा नहीं, आप भी सुन्नते सहाबा को अदा कर रहे हैं। जो पैदल चल के आते हैं ना, ये सहाबा की सुन्नत है। जहां जहां हुजूर दर्स फरमाया करते थे, सहाबा वहां पैदल चल के हुजूर का दर्स सुनने के लिए जाया करते थे। हुजूर दर्स अता फरमाते थे तो सुनने के लिए जाया करते थे। वो वहां से चल के आए हुजूर की बारगाह में, आके बैठ गए हुजूर की महफिल में। मेरे हुजूर ने उस सहाबी को देखा, हुजूर ने रुख फेर लिया, हुजूर ने चेहरा फेर लिया, दूसरी जानिब कर लिया। वो सहाबी उठे और फिर हुजूर के सामने आके बैठ गए। हुजूर के चेहरे के सामने फिर दोबारा आके बैठ गए। जब हुजूर के सामने आके बैठे, मेरे हुजूर ने मुंह फिर फेर लिया। मुझे ये बताओ, जिससे हुजूर मुंह फेर ले भला वो किसके दर पे जाए? हमारा तो सहारा ही हुजूर है, हुजूर के सिवा हमारा कोई सहारा ही नहीं। अगर हुजूर ने हमसे मुंह मोड़ लिया तो हम किसके दर पे जाएंगे? जो तेरे दर से यार फिरते हैं, फिर वो दर बदर खार फिरते हैं। फिर बरा उनकी भी कोई जिंदगी है जो तेरे दर से फिर जाए। महबूब आप ही की तो चौखट है, जिस चौखट से हम गरीबों को खैरात मिलनी है। कल क़यामत के दिन जब सारे नबियों ने कहना है नफ्सी नफ्सी इज़्हबू इला गैरी, महबूब हमने तो आपके दरवाजे पे आना है। अगर आपने ही मुंह मोड़ लिया तो हम किसके दर पे जाएंगे? जब हुजूर ने फिर रुख फेरा, वो फिर हुजूर के सामने आ गया। मेरे हुजूर अब फिर दोबारा रुख फेर लेते हैं। जब दोबारा रुख फेरते हैं तो वो रोने लगता है। वो रोए ना तो और क्या करे, जिससे हुजूर मुंह मोड़ ले, जिससे हुजूर मोड़ ले मुंह। हमारा तो सहारा ही हुजूर है। अब वो रोने लगा। पास बैठे एक सहाबी ने थपकी दी, कहा चुप हो जाओ। कहा रो ना तो और क्या करूं, मुझ जैसा भी कोई बदबख्त है जिसकी जानिब मोहम्मद नहीं देखते, जिसकी जानिब हुजूर नहीं देखते। मैं रो ना तो और क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया। उसने सर से लेके पांव तक नजर डाली और डाल के कहा तेरे हाथ में जो अंगूठी पहनी हुई है, तेरी उंगली में जो अंगूठी पहनी हुई है, ये सोने की है। तुझे पता नहीं सोना मर्द पे हराम है? तुझे पता नहीं सोना मर्द पे हराम है? कहा नहीं मुझे नहीं पता। कहा इसको उतारो। जब उसने ये बात सुनी, उसने कहा ये महबूब को पसंद नहीं है। उतारी और उतार के दूर फेंक दी। मर्द के लिए चांदी की अंगूठी पहनना जायज है 4.5 माशे। इतनी चांदी पहनना मर्द के लिए जायज है। सोना मर्द पर हराम है। जितना देर पहनेगा उतनी देर वो बंदा हराम का मुर्तकिब होता रहेगा। ये शादियों पे मर्दों को अंगूठियां सोने की पहनाना, बात सुन लीजिएगा, ये हम दावे से काम करते हैं और इज्जत और तौकीर की खातिर काम करते हैं। ये इज्जत नहीं होती बल्कि सरासर रब के हुक्मों की नाफरमानी हो रही होती है। अब अंगूठी उतार के फेंक दी सोने की। वो सहाबी रसूल हुजूर की बारगाह में बैठे। अब मेरे हुजूर ने उसकी जानिब रुख कर लिया। अब हुजूर ने उसकी जानिब क्या किया? रुख फरमा लिया। तो यहाँ रुक के एक बात समझिएगा, जो बंदा हुजूर की सुन्नत से मुंह मोड़ता है, हुजूर उससे मुंह मोड़ लेते हैं। हुजूर उसकी जानिब नहीं देखते। जो हराम काम करे हुजूर उसको पसंद नहीं करते। अब हुजूर ने आगे हाथ बढ़ा दिया। पहले हुजूर देख नहीं रहे थे, आगे हाथ बढ़ा दिया। अब हुजूर ने उसका हाथ पकड़ लिया। और यार जिसका हाथ हुजूर पकड़ ले भला उसे किसी के दर पे जाने की जरूरत है? लजपाल परीत नु तोड़ दे नहीं, जिंदी बाह फड़ लैन नु छोड़ दे नहीं, जिंदी बाह फड़ लैन नु छोड़ दे नहीं। मेरे हुजूर ने हाथ पकड़ा और करीब कर लिया।
सहाबी रसूल कहते हैं मेरे घुटने हुजूर के घुटनों से मिल गए, हुजूर ने और करीब किया, सीने से लगा दिया, मैं रो रहा था, मेरे सारे दुखड़े खत्म हो गए, सारे दुखड़े खत्म हो गए, सारे दुख खत्म हो गए। हुजूर ने सीने से लगाया और कहा बड़ा लंबा सफर करके आए हो, थक तो नहीं गए? सहाबी रसूल कहते कसम खुदा की बड़ा थका था, लेकिन जब मुस्तफा ने पूछा सारी थकावटें उतर गई, सारी थकावटें उतर गई। और फिर मैंने हुजूर के हाथों को बोसे दिए, हुजूर मेरे से बातें करते रहे, मेरा हाल पूछते रहे। फिर हुजूर उठे और उठ के आगे चले। जब हुजूर आगे चले ना, जब हुजूर आगे चले तो फरमाते हैं मैं भी पीछे पीछे, किसी ने मेरे पीछे थपकी दी कमर पे, यहाँ हाथ मार के कहा ओ भाई जा वो अंगूठी उठा ले, खुद ना पहनना, बेच देना, जाके बीवी को कुछ और बनवा देना। हाथ पकड़ के यूं झटका और झटक के कहा तू कहता है उसे उठा लूं, कसम खुदा की मैं उस जानिब देखूंगा भी नहीं जो मुस्तफा को पसंद नहीं है, जो मुस्तफा को पसंद नहीं है। आज रात को आपके नाम एक वजीफा है, रात को सोते वक्त आंखें बंद करके सोचिएगा मेरा क्या क्या हुजूर को पसंद है और क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। आप ये सोचिएगा, फिर चालू हो जाएंगे हम हुजूर को कितना मानने वाले हैं और हुजूर से कितने अदावत करने वाले, बुग़्ज़ रखने वाले हैं। हुजूर की सुन्नतों को अपनाएं, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जो हयात तय्यबा है उसको अपनी जिंदगियों में ले आए। ये कामिल ईमान वालों की सुन्नत है। मोहब्बत किसको कहते हैं बताऊं? मोहब्बत किसको कहते हैं? मैं भी कहता हूं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, आप भी कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। जो हो ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। सुनिए हुजूर का, हुजूर के सहाबा का अंदाज़ मोहब्बत। हम भी मोहब्बत के दाई हैं हुजूर के सहाबा। हुजूर ने ऐलान फरमाया सहाबा आओ जंग पे जाना है, आओ जंग पे जाना है। तो एक औरत आई जिसने अपने ऊपर चादर लपेटी हुई थी, आके अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहती हूँ कल क़यामत का दिन हो मुझे शहीद की माँ के नाम से याद किया जाए। किस नाम से? शहीद की माँ के नाम से याद किया जाए। मेरे हुजूर ने फरमाया ए बीबी, शहीद की माँ उसी वक्त बनती है औरत जब वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करती है। लाना फिर बेटा, ला बेटा फिर किधर है जिसको अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। उसने चादर उठाई और 6 माह का बच्चा पेश कर दिया। कितने माह का? कितने माह का? एक दफा सारे बोलेंगे तो आगे बात। 6 माह का बच्चा हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। मेरे हुजूर मुस्कुराए, फरमाया बीबी ये 6 माह का बच्चा क्या करेगा? इस 6 माह के बच्चे ने क्या करना है? वो कहने लगी या रसूल अल्लाह, मैं बड़ी उम्मीदें लेके आई हूं, खाली न मोड़ी ओ तैबा दे साइयां, जग छड़ के सारा तेरे दर ते आई। रब दा तू प्यारा ते रब दा हबीब है, दुखियां बीमारां दे दिल दा तबीब है। मैं दुखी हारी आपके दर पे आई हूं, आपके दर पे आन पहुंची हूं, मैं आप तक आन पहुंची हूं। या रसूल अल्लाह मुझे खाली दामन न लौटाइएगा, मुझे खाली न लौटाइएगा। जब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में ये बात अर्ज करती है तो हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं बीबी ये करेगा क्या 6 माह का बच्चा? अब जवाब सुनिए, मैं भी कहता हूं मैं आशिक रसूल हैं, आप भी कहते हैं हम आशिक रसूल हैं। उस बीबी का जवाब सुनिए। कहा या रसूलल्लाह जंग में जितने लोग जाएंगे सारों के पास तलवारें होंगी, ढाल होगी जिससे दुश्मन का वार रोका जाता है। ढाल जो बाजू पे बाएं पे बांध के दुश्मन का वार रोकते हैं, सारों के पास ढालें भी होंगी। कोई तो ऐसा होगा जिसके पास ढाल ना होगी। या रसूल अल्लाह जिस गुलाम के पास ढाल ना हो दुश्मन का वार रोकने के लिए, उसके बाजू पे मेरे 6 माह के बच्चे को बांध दीजिएगा। दुश्मन तलवार का वार करेगा, मेरे बच्चे के जिस्म के टुकड़े हो जाएंगे। कल क़यामत के दिन मुझे शहीद की माँ के नाम से याद किया। मेरे हुजूर की आंखों से आंसू, हुजूर रोने लगे। मेरे हुजूर ने देखा अजब मोहब्बत इस औरत की। मेरे हुजूर ने उस औरत से कहा बच्चा मुझे दे दो। मेरे हुजूर ने सीने से लगाया, माथा चूमा, कुर्बान जाऊं बच्चे तेरी कुर्बानी पे। यहाँ एक बात मुझे और याद आ गई, इमाम हुसैन की बात याद आ गई। हालांकि मौजू से मुतल्लिक नहीं है लेकिन इश्क रसूल जरूर है उसमें। इमाम हुसैन का 6 माह का अली असगर था। आप जानते हैं इमाम हुसैन अब ले गए करबल के मैदान में 6 माह के अली असगर को उठा के। लोग कहते हैं इमाम उस वक्त पानी मांगने के लिए गए थे और कह रहे थे इस 6 माह के अली असगर पे तरस खा लो, इसे पानी दे दो। जालिम अपनी जुबान को बंद रख, मेरा इमाम किसी बंदे से नहीं मांगता। मेरा इमाम जब भी मांगता है मौला से मांगता है, किसी बंदे से नहीं मांगता।
तू कहता है उनसे मांगने गए थे, मेरा हुसैन उनसे पानी नहीं मांगने गया था, मेरे हुसैन बच्चे को उठा के ले गए थे मैदान के अंदर और बता ये रहे थे मौला जितने चल के आ सकते थे हुसैन ने उन्हें तैयार करके मैदान में भेज दिया। ये 6 माह का अली असगर खुद चल के नहीं आ सकता था, उठा के ले आया हूं मौला इसकी कुर्बानी कबूल कर। मैं 6 माह का इसे उठा के ले इसकी कुर्बानी कबूल कर ले। हुजूर से इश्क इतना था कि अपने 6 माह के अली असगर को भी कुर्बान कर दिया। अब उस बीबी ने कहा या रसूलल्लाह 6 माह का बच्चा है, मेरे हुजूर रो रहे हैं, सीने से लगाया हुआ है और फरमाते क्या है, मेरे हुजूर फरमाते क्या है, मेरे हुजूर फरमाते हैं ऐ बीबी तेरा दिल सच्चा, तू अंदर की पक्की है, तूने सच्चे दिल से ये बात जिक्र की है, जा मेरा तेरा वादा हो गया, मोहम्मद तुझे जमानत देता है, तेरे बेटे की कुर्बानी मैंने कबूल कर ली, मेरा रब की भी कबूल कर लेगा। कल क़यामत का जब दिन होगा तुझे आवाज आएगी और शहीद की माँ आजा, तेरे बेटे को शहादत के रुतबे पे फाइज कर दिया, तेरे बेटे को शहादत के रुतबे पे फाइज कर दिया। भाई मोहब्बत इसको कहते हैं। जंगे ओहद है, मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गिर्द सहाबा की दीवार बनी हुई है। ये वो वक्त था जब मुसलमान जंग हारने के करीब थे और तलवारें और तीरों की बारिश थी और आवाज क्या उठ रही थी, आवाज उठ रही थी मोहम्मद को शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया माअज़ल्लाह। तो हुजूर के सहाबा सामने सीना तान के खड़े से, उन सामने सीना तान के खड़े होने वालों में एक सहाबी रसूल का नाम हजरत अबू दुजाना है। क्या नाम है? हजरत अबू दुजाना सामने सीना तान के खड़े हैं। इतने तीर लगे, इतने तीर लगे, कल कुल फुस, जैसे से नहीं होती कांटों वाली जानवर, देखिए से का पता है, पता है से का, से होती है कांटों वाली। इस तरह हजरत अबू दुजाना का हाल था। लेकिन अबू दुजाना ना इधर हिलते हैं ना इधर हिलते हैं, बल्कि तीर को कहते हैं ऐ तीर तू जितनी मर्जी ताकत से आ, उस वक्त तक तू आगे नहीं बढ़ सकता जब तक मोहम्मद के गुलाम की सांसों में सांस मौजूद है, वजूद में एक सांस भी है, आगे नहीं बढ़ सकता। इकबाल का शेर पढ़ लूं अगर किसी को समझ आ जाए तो इकबाल फरमाते हैं गर वक्त अजल, अजल कहते हैं मौत को, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, मौत का वक्त हो, सिर हो तेरी चौखट पे, तेरे दरवाजे पे, तेरे बुए थे, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। एक ही सजदा काफी है अगर मरते वक्त आखिरी सजदा मुस्तफा के कदमों में दस्तयाब हो जाए। इसको मोहब्बत भाई कहते हैं, इसको मोहब्बत की दास्तां। ऐ मेरी मिल्लत के जवानों, हम भी हुजूर से प्यार करने वाले हैं, तुम्हारी जवानियां भी हैं, मेरी जवानी भी है। इस जवानी का अंदाज क्या होना चाहिए? हुजूर से मोहब्बत का अंदाज। मेरे हुजूर के सहाबी हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रात है पहली शादी की, शादी की पहली रात है, सारी रात आधी के करीब गुजर गई, मस्जिद नबवी में हुजूर की बारगाह में बैठे हुए हैं, मेरे हुजूर के चेहरे को तक रहे हैं। मेरे हुजूर फरमाते हैं ओ साथ जा, घर चले जा, घर चले जा, तेरी जोजा तेरा इंतजार कर रही होगी। हजरत साद कहते हैं या रसूलल्लाह थोड़ी सी मोहलत और दें। फरमाया क्यों, क्या करना है या रसूलल्लाह? दिल चाहता है आपका चेहरा ही तकी जाऊं, वो चेहरा जिसके मुतल्लिक पीर मेरे अली शाह ने कहा था मुख चन्न बदर शाह शानी है, मत्थे चमक दिलाट नूरानी है, काली जुल्फते अख मस्तानी है, मुख मूर अखीहिन मद बरिया, सुबहान अल्लाह माँ अजमाला का, माँ आसना का, माँ अकमाला का, कित्थे मेरे अली कित्थे तेरी सना, गुस्ताख अखी कित्थे जा लड़ियां, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेरे अली इत्था जा नहीं बोलन दी। कोई जुल्फा छल्ले ओ छल्ले, कोई जुल्फा छल्ले ओ छल्ले, सारा जग सोना है पर मेरे आका तो थल्ले ओ थल्ले, मेरे आका तो थल्ले ओ थल्ले। मेरे महबूब के अंदाज़े हुस्न को किस अंदाज में देखते? कहते या रसूलल्लाह दिल चाहता है आपका चेहरा तकी जाऊं। मेरे हुजूर थोड़ी देर बाद फिर फरमाते या रसूलल्लाह थोड़ी और मोहलत दीजिए। आधी रात से ज्यादा वक्त गुजर गया, आखिरी पहर शुरू हो गया। मेरे हुजूर फरमाते हैं यार चला जा। अब हुजूर हुक्म देते हैं, फरमाते हैं हुक्मन तुझे कहता हूँ घर चला जा, तेरी बीवी तेरा इंतजार कर रही होगी। अब सहाबी रसूल पीछे हटते हैं लेकिन कमर पीछे नहीं करते, उल्टे नहीं होते, सीधे ही पीछे पाँव पीछे की जानिब चलते जाते हैं और यहाँ तक के दरमियान में सुतून आ जाता है। जो ही सुतून आता है हुजूर का चेहरा आंखों से ओझल होता है, सहाबी रसूल गिर के बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद होश आती है तो अर्ज करते हैं बंदा नवाज
अपने आप से जुदा ना कीजिएगा। मेरा दिल चाहता है सारी रात हो आपका चेहरा हो, मैं आपको देखता रह जाऊं। वो चेहरा जिसके मुतल्लिक आला हज़रत लिखते हैं, मेरे आका का चेहरा तो अस्ल कुरान है, आशिकों की तिलावत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा का चेहरा तका, मेरे हुजूर के चेहरे को तके। हुजूर ने हुक्म फरमाया जा घर चले जा। वो सहाबी रसूल घर आए, दरवाजा खोला, अंदर बीवी बैठी है। देखिए पहली रात है, उजला उरूसी के अंदर अपनी बीवी के पास आके अपने कपड़े उतारे और वो लिबास जो पहना हुआ था, ऊपर ज़िरा पहनी हुई थी, उसको उतारा, तलवार उतार के रख दी और आके जाके जब चारपाई पे बैठे और करीब था कि हाथ उनका घूंघट की जानिब बढ़ता, जो पर्दा लिया हुआ है उस पर्दे को उठाने के लिए, चादर उतारने के लिए चेहरे से कि चेहरा तकू मुंह वेखन लगे। पहली बारी मुंह वेखन लगे। पंजाबी जी चलो कर लीजिए, शायद कोई तवज्जो हो जाए। मुंह वेखन लगे पहली बारी। कहा पहली बारी मुंह ते भी खाना, अभी ये कलमे कह रहे थे। कहा घूंघट ते चुकना, चेहरा ते भी खाना। उधर से आवाज आई, ए मोहम्मद के गुलामों आ जाओ, तुम्हें आका याद कर रहे हैं, आ जाओ तुम्हें आका याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं। वो जो हाथ घूंघट की जानिब बढ़ा था, वो हाथ जो पर्दे की जानिब बढ़ा था, पीछे हट गया और उठे और ज़िरा पहनी, तलवार उठाई। कहा आवाज किस चीज की? अगली आवाज आई, अपनी तलवारें लेते आओ और जंग के लिए सुबह जाना है। जोजा आगे बढ़ी, बढ़ के दामन पकड़ लिया। ऐ मेरे खामंद, पहली रात है जिंदगी की, भला कोई पहली रातों को भी अपनी बीवियों को छोड़ के जाता है, तुम छोड़ के जा रहे हो। कहा तुम पीछे हटो, तुम कौन सी बात करती हो? ऐसी हजारों बीवियां भी मोहम्मद के हुक्म पे कुर्बान कर दूं, ऐसी हजारों बीवियां भी हो तुम हुजूर के हुक्म पे कुर्बान कर दूं। दरवाजा खोला और निकल गए। जब निकले हुजूर की बारगाह में पहुंचे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के लिए ले गए। जंग की, उसी जंग के दौरान हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला जंग में लड़ रहे हैं। मेरे हुजूर बुलंद मुकाम पे खड़े हुए, सारी नजरें साद पे टिकी हुई हैं, सारी नजरें साद पे टिकी हुई। जिस्म पे इतने जख्म आए, छल्ली हो गया, वजूद से खून रिस रिस के हजरत साद जमीन पे गिर गए। साद जमीन पर गिरते हैं और गिरकर जिस्म छल्ली हो जाता है, खून निकल रहा होता है। अपने जिस्म को जमीन के साथ घसीटने लगते हैं, घसीट रहे हैं वापस की जानिब। किसी ने कहा पानी चाहिए तुझे, पानी दे दे, पानी पिला दे। साथ जवाब देते हैं नहीं, जाओ तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, जाओ तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करो दो। जिस्म लुथड़ा हुआ, ऐन इश्क जिन्हां नूं लग जांदा, ओ सुक जांदे नी वांग कानियां दे। कुछ सुक जांदे, कुछ मुक जांदे, नाल खरकत दे दानियां दे। किसे इश्क दा नाम बदनाम कीता, कई रुल गए वांग परवानियां दे। वारिसा इश्क दे बदे नहीं छुटदे, कैदी छुट जांदे नी जेल खानियां दे। जिस्म को घसीट रहे हैं, जमीन के साथ लुथड़े हुए। मेरे आका देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मेरे हुजूर अब ऊपर से नीचे तशरीफ लाते हैं, यहाँ तक कि हजरत साद के करीब अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप रुक जाएं, आप रुक जाएं। मैं चाहता हूं मैं इसी तरह घसीटता हुआ आपके कदमों में पहुंच जाऊं, अपना सर, अपना वजूद घसीटता आपके कदमों में पहुंच जाऊं। हजरत साद आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। मेरे हुजूर उठाते हैं, उठा के सीने से लगाते हैं, माथा चूमते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी एक अर्ज है। फरमाया बोल क्या कहते हो? कहा या रसूल अल्लाह मुझे छोड़ दे, मेरी जिंदगी की आखिरी सांसें हैं, मैं चाहता हूं आखिरी सांसें निकले तो आपके कदमों में निकले, आखिरी सांसें निकले तो आपके कदमों में निकले। मेरे हुजूर ने इजाजत दी, आखिरी सांसें हुजूर के कदमों में निकले। और आखिरी सांसें जब कुर्बान हो गई, मेरे हुजूर ने अब उठाया, अपनी गोद में रख लिया। अब देखें हुजूर यदुल्लाह वाले हाथों से हजरत साद का चेहरा साफ कर रहे हैं, और साफ करते करते हजरत साद के चेहरे पे बोसा दिया। बोसा दे के हजूर ने हजरत साद के चेहरे को अपनी गोद में रख लिया, और गोद में रख के फरमाया सहाबा कफन दफन का एहतिमाम किया जाए। कफन दफन का एहतिमाम किया गया, जनाजे के लिए गए। जनाजों में हुजूर ने पाँव आधे रखते हैं, आधे पाँव रख के चलते हैं, आधे आधे पाँव। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह आप पाँव पूरे नहीं लगाते। फरमाया ऐ लोगो, आसमान से इतने फरिश्ते जमीन पे आए हैं कि कदम पूरा रखने के लिए जगह मौजूद नहीं, इसलिए आधे पाँव रखना। इस साद ने मोहब्बत का हक अदा कर दिया। देखो इसकी बीवी पहली रात इसकी मुंतजिर इसे बुला रही थी, लेकिन इसने कहा मुझे तेरी जरूरत नहीं, मुझे मोहम्मद की जरूरत है। मेरे हुजूर की बारगाह में इस तरह हाजिर हुए। फरमाया लोग, सारी कायनात ये कहती है कि मेरे
मेरे मोहम्मद पर माँ बाप कुर्बान हो जाएं। मेरे हुजूर का जुमला सुनिए, फिदा का अबी व उम्मी या साद, ऐ साद तुझ पे मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान हो जाए। हज़रत साद को ये एजाज़ बख्शा, ये मोहब्बत मुस्तफ़ा का अंदाज है। अगर बंदों के सीनों के अंदर सही मानों में मोहब्बत मुस्तफ़ा गांगुज़ी हो जाए, मोहब्बत का दामन हम थाम लें, तो हम हकीकत में मोहब्बत के वो पहरेदार बनेंगे जिसका हक हमसे अदा नहीं हो सकता। आखिरी हदीस पाक मेरी और आपकी हाज़िरी ख़त्म और मेरा खुतबा इख्तिताम की जानिब है। आखिरी हदीस मुबारक आपने तवज्जो से सुननी है। शरह सुदूर के अंदर अल्लामा जलालुद्दीन अस्सयूती लिखते हैं, मोहब्बत किसको कहते हैं। मेरा सवाल क्या है, मोहब्बत किसको कहते हैं? आज आप सुन जाइएगा, अगर किसी को समझ आ जाए तो आपको सारी जिंदगी ये बात नहीं भूलेगी कि मोहब्बत किसको कहते हैं, मोहब्बत किसको कहते हैं। शरह सुदूर में अल्लामा जलालुद्दीन अस्सयूती लिखते हैं, 3 भाई थे जो कैद होके कैसरे रूम के पास चले गए। शाह रूम बादशाह के पास गए, जो ईसाई था उसके पास गए। अब तीनों कैदी हैं, खूबसूरत हैं, जवान हैं, अरबी हैं, और उनके चेहरे से रोशनियां टपकती हैं, नूर टपकता है। उसने कहा, तुम्हारे पास 2 राहें हैं, या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ या मोहम्मद का दीन छोड़ दो। या मरने के लिए तैयार हो जाओ या मोहम्मद का दीन छोड़ दो। उन्होंने कहा, तुम मार सकते हो लेकिन मोहम्मद का दीन हमारे सीनों से निकाल नहीं सकते, मोहब्बत मुस्तफा को हमारे सीनों से निकाल नहीं सकते। उसने कहा, अभी वक्त है। उसने कहा, क्या करोगे? कहा, ऐसी सजा दूंगा कि रहती दुनिया तक तुम्हारी सजाएं याद रहेंगी। कहा, क्या? आग जला दो। आग जला दी गई। एक कड़ाहा लिया गया, उसके अंदर तेल डाला गया। कहा, आग को बखाओ और आग को और मजीद तपाओ। अब आग के शोले उभरे, वो तेल मजीद गर्म हुआ, इतना गर्म हुआ कि शोलों की मानिद ऊपर की जानिब उबलने लगा। कहा, इसको देख रहे हो? कहा, देख रहे हैं। कहा, तुम क्या कर रहे हो? कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? जवाब सुनिए, गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए इसकी परवाह नहीं करते। मोहम्मद के गुलाम जान दे सकते हैं पर मोहम्मद का दिया ईमान नहीं दे सकते। वो जवाब सुन के उससे कहा, तुमने अभी देखा नहीं है। एक गुलाम को बुलाया जिसपे वो हुक्म था कि इसको फांसी चढ़ाना है। पकड़ा, कहा, इसमें डालो। उसमें डाला। जब डाला, हड्डियां अलग हो गई, ऊपर वाला मांस वो तल छट बन के, वो कोयला बन के अलग हो गया। कहा, देख रहे हो इसका क्या हाल हुआ? सारे का सारा मजमा कांपने लगा। वो आगे से मुस्कुरा के कहते हैं, किन को डरा रहे हो? हम मोहम्मद के गुलाम हैं, हम जान देने से नहीं डरते, हम जान देने से नहीं डरते। तू हमें क्या डराएगा? जा किसी और को डरा। उसने एक को पकड़ा, आगे डालने लगा, छोटा आगे बढ़ा। कहा, पहले इसे ना डालो, पहले मुझे डालो। वो कहने लगा, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? कहा, मौत से काफिर डरते हैं, जो मोहम्मद के वो मौत से डरा नहीं करते। वो जिंदा रहे फिर भी मुस्तफा के गुलाम, मर जाए तो फिर भी मुस्तफा के गुलाम हैं। कहा, डालो। एक को डाला, इस तरह हो गया। दूसरे को डाला, तलछट करके अलग कर दिया। अब तीसरा एक रह गया जो सबसे छोटा था, 18 साल की चढ़ती जवानी, उरूज और बांकपन था उस पे। उसको आगे लाने लगे तो वजीर आगे बढ़ता है, कहने लगा, जान की अमान पाऊं तो एक अर्ज करूं, बोलो क्या कहते हो? अर्ज ये है कि मेरी बात सुन लो, इस जवान को छोड़ दो, मैं इसका ईमान छीन लूंगा। उसने कहा, कैसे छीनोगे? कहा, ये मेरा काम है, इसका ईमान 40 दिनों के अंदर अंदर छीन लूंगा। कहा, चलो तेरा मेरा सौदा तय हो गया, जो तुम मुंह से मांगोगे वो तुम्हें इनाम मिलेगा, अगर तू इसका ईमान छीन लेते हो। अब हुआ क्या? उस जवान को उस वजीर ने पकड़ा, अपने घर ले गया, जाके एक कमरे में बिठाया और अपनी बेटी के पास चला गया। वो वजीर जाके कहने लगा, ऐ मेरी बेटी, तेरे हुस्न की एक झलक को जमाना तरसता है, तू इतनी खूबरू और खूबसूरत है, आज तेरे जिम्मे एक काम लगाना चाहता हूँ। कहा, बता क्या काम है बाबा? कहा, ये जो नौजवान अंदर गया है, इसका ईमान तूने छीनना है, इसका ईमान तूने छीनना है। मैं जवान चेहरे देख रहा हूँ, आपकी जवानियों के नाम मेरा आखिरी पैगाम है। जवानों, मेरी जानिब तवज्जो से बात सुन लीजिएगा। उस जवान से कहा कि उस जवान बेटी से इस जवान का ईमान छीनना है। उसने कहा, बाबा ये तो मेरी एक आंख का कमाल है, एक झलक तक लेगा तो वो दीवाना हो जाएगा। उसे नहीं पता था
जो मोहम्मद के दीवाने हो जाते हैं, किसी और के दीवाने नहीं हुआ करते। अब वो नौजवान लड़की अंदर गई, नौजवान लड़की जाके सर से दुपट्टा उतारा, अदाओं से बैठ गई। कुर्बान जाऊं उस जवान की जवानी पे, मैं भी जवान हूं, आप भी जवान हैं, सुनिएगा, हम भी जवानियों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। उस गुलाम की जिंदगी भी देखिए, लेकिन उसने अपनी आंखें झुकाई हुई हैं, लब हिल रहे हैं, आंखें झुका के कर क्या रहा था वो जवान? मुस्तफा पे दुरूद पढ़ रहा था। सारी रात गुजर गई, सारी रात वो नौजवान लड़की सामने बैठी रही, एक मर्तबा भी आंख झपक के उसे देखा नहीं। सुबह हुई, दरवाजा खोला, बाहर निकली, सामने बाप खड़ा था। बताओ बेटा क्या बना? कहा बाबा लगता है आज थका हारा था, परेशान था, उसने मेरी जानिब देखा ही नहीं। कहा बाबा सुबह से ही इसका ईमान छीन लूंगी। अगले दिन गई, अब क्या देखती है, जब अंदर गई तो उसने कहा अल्लाहु अकबर। सारी रात क़याम में गुजार दी। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के नेक बंदों की अलामतें हैं, उनकी रातें और दिन अल्लाह की इबादतों में गुजरती, सुजूदो क़याम में गुजरते हैं। सारी रात क़याम में गुजार दिया। उस सुबह निकली बाहर, बाप ने कहा बाबा सारी रात आज खड़ा रहा बुत बन के, मुझे नहीं पता क्या करता है। अगले दिन से ही 40 दिन गुजर गए। जिस दिन 40वीं रात आई, उस रात उसके पास गई, अपने वजूद से दुपट्टा भी उतार लिया, जिस्म को बरहना कर लिया और सामने आके हाथ पकड़ के कहने लगी तेरी आंखों में क्या रखा है जो तू जमाना मेरी एक झलक को तरसता है? तू मेरी जानिब देखता नहीं, तेरे सामने अपने आप को पेश करके बैठी हूं। उसके आंखें झुकी हुई थी, झुकी आंखों से जवाब देता है तू कहती है मैं हसीनो जमीन हूं, मैंने ऐसे सोने का चेहरा तका है, ऐसे हसीन का चेहरा तका है, जब से उसका चेहरा तक लिया अब कोई और आंखों में जचता ही नहीं है, अब कोई और आंखों में मेरी जचता ही नहीं है। ऐसे मेरे हुजूर हैं जैसा नहीं कोई, मेरे आका इतने हसीन हैं, मैं किसी और को देखता ही नहीं हूं। कहा फिर मुझे बताओ 40 दिन हो गए हैं, तुम मुझे तो देखते नहीं, फिर मुझे ही वो दिखा दो जिसे तुम देख रहे हो, फिर मुझे ही वो दिखा दो जिसे तुम देखते हो। कहा सुनो फिर मेरी बात, कान खोल के सुनो। कहा सुनो, जाओ वुजू करके आओ। वो वुजू करके आई। कहा पीछे मुसल्ला बिछा लो। आगे वो खड़ा हो गया, पीछे उसे का मुसल्ला बिछा लिया, पीछे उसका मुसल्ला बिछा लिया। कहा जैसे जैसे मैं करता जाऊं वैसे वैसे तू करती जाना। उसने अल्लाहु अकबर कहा, सना पड़ी, रुकू में गया, मुकम्मल करके सजदे में गया। सर सजदे में वो जवान रख के कहता है मौला इस बिगड़ी हुई को यहाँ तक लाना मेरा काम था, दिल की बस्ती को बदलना अब तेरा काम, दिल की बस्ती को बदलना तेरा काम है। अब हुआ क्या, वो सजदे में है, वो भी सजदे में है, सर सजदे में रखा हुआ है। यहां तक कि उस औरत की आवाज आई, चीखें मारने लगी, और चीखें मारती उसकी जुबान पे पता क्या जारी हुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। उठी और रोने लगी। जब उसके बाद कहने लगी ऐ जवान तू सच कहता था, तू सच कहता था, जो मोहम्मद को देख लेता है फिर उसे कोई और हसीन लगता नहीं, वाकई तू सच्चा है। कहा लोगों ने कलमे पढ़े होंगे तो किसी अलामा से पढ़े होंगे, किसी मुफ्ती से पढ़े होंगे, शेखुल हदीस से पढ़े होंगे, लेकिन याद रख ऐ नौजवान, मुझे मोहम्मद ने सजदे में आके कलमा पढ़ा दिया। यहां रुक के मेरी बात सुनिएगा, मेरी मिल्लत के जवानों, हम भी जवां हैं, हमारी नजरों से लोगों की इज्जतें बचती नहीं। गलियों की नुक्कड़ पे, कॉर्नरों पे खड़े होके लोगों की इज्जतों को ताड़ने वाले जवानों, याद रखना जब तुम किसी की इज्जत के मुहाफिज बनोगे अल्लाह तुम्हारी इज्जतों का मुहाफिज बन जाएगा। बूढ़े माँ बाप को सताने वालों, गरीबों की बच्चियों पे गंदी नजर रखने वाले, बात याद रख लीजिएगा। एक जवान की बात सुनाने लगा हूं। एक शख्स था जिसकी जिंदगी इस हाल में गुजरी कि उसने अपनी सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी में गुजार दी। बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया। जब बूढ़ा हो गया और आंखों की बिनाई चली गई, अब अंधा हो गया, घर में बीमार पड़ा है, घर में उसकी सिर्फ एक जवां बेटी है, बूढ़ा बाप है। रिश्तेदारों के दरवाजों पे गई, एक दिन दो दिन किसी ने दिया, भला कौन देता है? सब रोगां दा रोग मुहम्मद, जिसका नाम गरीबी, कोरों दी कंड कर लग जाते नहीं यारो रिश्तेदार करीबी। जब गुर्बत आती है ना तो सारे लोग छोड़ जाते हैं, कोई नहीं हाल पूछता। वो एक शख्स था ना, बाजार से गुजरा तो वो सारों को सलाम करता, उसका कोई सलाम का जवाब ना दे। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ने उसके दिन फेर दिए, दिन बदले। तो अब बाजार में निकले, हर बंदा कहे चौधरी साहब सलाम अलैकुम,
चौधरी साहब सलाम अलैकुम। हर बंदा सलाम कहे तो आगे से कहे अच्छा मैं जाके कह दूंगा, जाके कह दूंगा। पूछा भाई किसको कह दोगे? उसने कहा जिसको तुम कहते हो। उन्होंने कहा हम तो तुझे कहते। कहा मुझे नहीं कहते। याद करो एक वक्त मैं तुम्हें सलाम करता था, तुम मेरे सलाम का जवाब नहीं देते थे। आज ये सलाम मुझे नहीं, सलाम माया को है, सलाम माल को है जो दौलत अल्लाह ने मुझे दी है। मैं तुम्हारे सलाम दौलतों को दूंगा। गरीबों को कोई सलाम नहीं करता, गरीबों के साथ तो सलाम कोई नहीं लेता। कहते इसके हाथ गंदे, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। गरीब को कौन पूछता है? अब सायों के दरवाजे उसकी बेटी ने फिर लिए। बाप बूढ़ा था, किसी के दरवाजे पे गई, एक औरत थी, उसने कहा क्यों मारे मारी फिरती है, आ मेरे साथ, तेरी ऐसी कीमत लगेगी कि तेरे हुस्न जमाल के लोग शैदाई हो जाएंगे। कहा कैसी कीमत लगेगी? सुनो, बाजार में हाथ पकड़ा, उसे बाजार में ले गई। आखिरी बात खत्म होने लगी, 2 मिनट सिर्फ मेरी गुफ्तगू रह गई, तवज्जो कीजिएगा। 2 मिनट गुफ्तगू रह गई। बाजू पकड़ा, बाजार में ले गई, बाजार में खड़ा किया, कहा लोग तेरी बोली लगाएंगे। सुबह से शाम तक खड़ी रही, किसी ने नजर उठा के ना देखा, किसी ने नजर उठा के ना देखा। सुबह से शाम तक खड़ी रही, किसी ने आंख भर के ना देखा। शाम को दबे कदमों से वापस लौट आई। बाप ने आते हुए कदमों की आहट सुनी। बाप बूढ़ा है, बाप को बड़ा पता होता है, आंखें हो ना हो औलाद के कदमों से भी वाकिफ होता है, औलाद की आहटों से भी वाकिफ होता है, वो सारी चीजों को जानता होता है। एक दिन देखा, दूसरे दिन फिर गई, उसने कहा सर से दुपट्टा उतार दो, बाजार में खड़ी हो जाओ। दुपट्टा उतार दिया, बाजार में खड़ी हो गई। सुबह से शाम तक खड़ी रही, किसी ने गंदी नजर से छोड़ के एक दफा आंख उठा के भी ना देखा। सारा दिन गुजर गया, शाम को वापस लौटी, उसके घर गई, कहने लगी किसी ने नहीं देखा, तुम तो कहती थी बड़ी हसीन और जमील हो, बड़ी कीमत लगेगी, मुझे तो कोई पूछने नहीं आया। तीसरा रोज उसने कहा जिस्म से आधा लिबास उतार दो, जिस्म से आधा लिबास उतारा, बाजार के चौक के अंदर खड़ी हो गई। वो हुस्ने बाजार में जहां औरतों की मंडियां लगती थी, वहां जाके खड़ी रही। सुबह से शाम हो गई, लेकिन आज भी किसी ने आंख भर के नहीं देखा। रोने लगी, रोती हुई घर वापस लौटी। जब कदम घर में रखा, न रहा गया, फूट फूट के रोने लगी। बूढ़ा बाप चारपाई से उठा, उठ के सीने से लगाया, बूढ़ा बाप भी रोने लगा। यार गरीबों के साथ अगर अल्लाह ने दिया हो तो गरीबों के साथ मदद करो, गरीबों की मदद करो। कितने बाप हैं जिनकी बेटियां, जिनके सरों में सफेदी आ गई, बाल सफेद आ गए, सिर्फ इस वजह से उनका कोई रिश्ता नहीं लेता, वो गरीब बाप की बेटी है। नाना कभी बालो सर को ना देखो, लोगों की बेटियों को इज्जत दिया करो, गरीबों को इज्जत दिया करो। ये लोगों की बेटियों के सरों पे हाथ रखा करो, दस्ते शफकत फेरा करो। जब कोई किसी के दस्ते शफकत रखता है, अर्श का रब उस बंदे से राजी हो जाता है। अब वो कहने लगा, सीने से लगा के रोने लगा, रोने लगा। बेटी कहती बाबा मैं इतनी गंदी हूं, इतनी गलीस हूं, मेरी क्या सूरत इतनी बदसूरत है, मुझे कोई देखता नहीं, मेरी जानिब कोई नजर नहीं उठाता। बाप ने सीने से लगा के रोते हुए कहा बेटा बात ये नहीं है, बात ये नहीं है, आखिरी बात पल्ले बांध लीजिएगा, बात ये नहीं है बेटा, बात ये है, बात ये है तू आधे जिस्म से कपड़े उतार के आज बाजार खड़ी रही, मैं यहाँ बैठा भी तुझे आंखें बंद थी, दिल की आंखों से देखता रहा हूँ। कसम खुदा की अगर तू सारे वजूद से भी कपड़े उतार देती और बाजार में खड़ी रहती, मैं कसम उठा के कहता हूँ तुझे मैली आंख से कोई ना देखता। कहा बाबा क्यों ना देखता? कहा बात ये है आज तक तेरे बाप ने किसी की इज्जत को भैड़ी आंख से नहीं देखा, गंदी आंख से नहीं डिठा, भैड़ी आंख से नहीं डिठा, वो भैड़ी आंख से नहीं डिठा, बुरी आंख से नहीं देखा। तो जो किसी की इज्जत का बेटा मुहाफिज होता है, अल्लाह उसकी इज्जत का मुहाफिज होता है। जवानों अगर चाहते हो तुम्हारी बहन की इज्जत महफूज रहे, तुम्हारी बेटी की इज्जत महफूज रहे, तुम्हारी बीवी की इज्जत महफूज रहे, तुम्हारी माँ की इज्जत महफूज रहे, तो फिर याद रखना लोगों की बहनों को, बेटियों को, बीवियों को इज्जत देना शुरू कर दो। अर्श का रब उस वक्त भी हिफाजत करेगा जब कोई बंदा भी ना हो। मेरी मिल्लत के जवानों, ये मेरा आखिरी पैगाम है, अपनी जवानियां गुजारनी तो हुजूर से इश्क में गुजार दो। ये यार, ये बेली, ये सज्जन, ये दोस्त, कोई नहीं, सब झूठे नारे, सब झूठे दावेदार हैं। आपको पता होगा जब कोई मौत का फरिश्ता आता है ना, तो आखिरी वक्त होता है तो लोग कहते हैं पीछे और डर लगता है, डर लग रहा है। फिर कोई मर जाए ना, जितने यार बेली सज्जन हो, सब तो पहलों मिट्टी कबर ते वही पौधे पाते, सब तो पहलों भी मेरा यार सी मैं मिट्टी पहले पा दिया, भज के मिट्टी पहले पाते ने। और फिर जदों मैयत उठा के लेके जा रहे होंगे तो कंधा जल्दी जल्दी बदल देने, यार वजन ज्यादा हो गया मेरी तरफ, वजन मेरी तरफ ज्यादा हो गया।
अब मैयत कब्र में उतार दी जाती है, आवाज आती जल्दी करो भाई, इस बंदे सुबह के भूखे हैं, रोटी खिलाओ। कोई याद नहीं, कोई सज्जन नहीं, कोई बेली नहीं। जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां नहीं। जेड़े तरसदे सन दीद नूं दिने राती, अज उन्हां भी बारियां मारियां नहीं। जेड़े कहंदे सी राती तैनू ना वेखीए ते नींद नहीं आउंदी, सुबह तैनू ना वेखीए ते साडा दिन नहीं चढ़दा। जेड़े तरसदे सन दीद नूं दिने राती, अज उन्हां भी बारियां मारियां नहीं। जद बाग दे विच खजाने वाल खोले, आपको पता है दरख्तों पे परिंदे बैठे रहते हैं। जब दरख्तों के पत्ते झड़ते हैं सारा साल परिंदे बैठते हैं, जब पतझड़ का मौसम आता है तो परिंदे भी उड़ जाते हैं। जब बाग दे विच खजाने वाल खोले, जब मौत का फरिश्ता आ गया, जब बाग दे विच खजाने वाल खोले, पंछी उड़ गए मार उडारियां नी, मुहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, इक्को कमली वाले दियां सच्चियां यारियां नी, इक्को कमली वाले दियां सच्चियां यारियां नी। मेरे हुजूर से यारी लगाओ कि मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हमने तो दिया जला के रख दिया सामने, अब जिसका जी चाहे वो इससे पाले रोशनी, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दरूद व सलाम पढ़ दे चलो निसरे जी।